जंग जीतने के लिए 3 चीजों की बहुत अहमियत होती है, गैरत, ईमान और अकल। आप इन तीनों चीजों से खाली हैं। आज मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा, आप लोगों को आईना दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को YouTube से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये YouTube से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो PCR टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका PCR का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। Data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. I didn't quite get that. Can I hear that one more time? I'm serious. I could not tell what you just said. From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits onward to a secondary individual. Still didn't quite get that, but Dr. Samadi went to medical school. He's been listening to doctors all of his life. Doctor, I believe the headline from the World Health Organization is asymptomatic people are not infectious. They're not going to spread the disease. Is that what the WHO is saying? Yes, that's correct, Greg. Look, you and I have been going at this since February of this year. We've covered more than hundreds of these segments on Newsmax TV. The most important segment about what we're going to be talking about COVID is probably tonight, because they're taking a 360-degree turn, and WHO is announcing, and this is a big news, that asymptomatic people out there are not contagious. Remember, because we didn't know who would be passing this virus or not, we made everybody do something called social distancing. This is a new word that you've heard of it, and it came to our life a few months ago. We made everybody across the board to wear masks. At the beginning, we said if you have symptoms, you wear the mask to protect others, and then we gave in because CDC and everybody kept changing back and forth. We also made everybody to go for testing. We need 300 million tests the next day, or else we cannot reopen our country. Breaking news that if you are not symptomatic and you don't have any symptoms of fever, chill, shortness of breath, or any of those symptoms we've spoken about, the risk of passing it on to other people and being contagious is very rare. And studies like this comes from a very accurate tracing in countries like Singapore, contact tracing, and it's too bad that these researchers are not, the papers are not making it to Lancet, and mainstream media is not covering to the extent. This is probably one of the biggest news that we've had since coronavirus outbreak. It's good news. That means really we can visit people that we weren't able to visit. You know, you didn't want to go around somebody of a certain age because you could be carrying it without knowing it. This is good stuff. Thank you for that, Doctor. Right. The big thing is that the panic and hysteria is out the door. We can reopen our America. 40 million people have lost their job as a result of this scientific data that was wrong. This is very big news for the country, Greg. Dr. Samadi, I like it. And for the world, you know what? It's a pandemic all over the world. Dr. Samadi, hopefully the future Surgeon General of the United States of America. I'm trying to make that happen. I think you'd be great down there. After this guy gets done, he's pretty good too. But you're great. Dr. Samadi, thank you very much. इस वक्त हम एहसन मुमताज़ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और ये मेरे पीछे जो आप दरअसल जमे गफीर देख सकते हैं और लोगों की जो धाड़े मारती आवाज़ें आप सुन सकते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है और वाक़या ये है कि एक बच्चा 24 साल जिसकी उम्र थी उसको उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर आए और उसको कोरोना के कुछ सिम्टम्स से उनको यहाँ पर लेकर आए और जैसे वो उसको यहाँ पर लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके टेस्ट वगैरह करवाएं, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब इनके इस बच्चे के जो लवाहिकीन हैं, जो 24 साल का बच्चा आधे घंटे बाद एक्सपायर हुआ है, अब इनके लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक यहाँ पर आया था और उसके बाद जब वो वापस आए हैं तो उनका ये कहना है कि उसको जो है इंजेक्शन लगा के मार दिया गया। वार्ड है, ये कोई ICU नहीं है, ये नॉर्मल वार्ड है, ये नॉर्मल वार्ड है जना अस्पताल का, सीना वार्ड है, उसमें ये पड़ी हुई है, लेकिन कोरोना की पेशेंट है।
कोरोना के पेशेंट इसको बना दिया गया। ये भाई हैं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ। ये मुझे बुखार था जी। खाली बुखार था तुम्हें? हाँ जी बुखार जी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन्होंने कोरोना कैसे बना दिया? खुद से बना दिया कोरोना? बस हर बंदे कोरोना कड़ी जाते रहे पर आम को लगे 150 दो अंदर आम देंगे उन्हें कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं। एमएसएन चले जाती है, एमएसएन सब बकवास है, वो तंग की जा रहा है। तो देखें नाज़रीन, ये आपने देख लिया कि ये हाल जिना हॉस्पिटल में है। और पता नहीं कैसा वायरस था कि इसने वुहान की सरहद को अबूर नहीं किया। नवंबर से शुरू हुआ और जनवरी के अंदर ये डायग्नोज हुआ, फरवरी में इसका ऐलान हुआ, कोविड-19 इसको कोड दिया गया विजिट। जब ये अननोन था और अछूत था तो वुहान की सरहद से बाहर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग तो हुई होगी ना लोगों की। 1,18,00,000 लोगों की ट्रैवलिंग शंघाई भी हुई होगी, बीजिंग भी हुई होगी, मुख्तलिफ जगह पे भी हुई होगी, बट वुहान से बाहर नहीं आया ये। तो इसका मतलब वाज़े तौर पे ये है कि ये फैल नहीं रहा था, ये फैलाया जा रहा था। देखें, ये दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बगैर गोली चलाए दुनिया की एक वर्ल्ड वॉर चल रही है। जब ये वॉर का इख्तिताम होगा और दुनिया खोलने की तरफ आ रही होगी तो तकरीबन 30-35 मुल्क जो है वो नक्शे से मिटना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. To move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को YouTube से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये YouTube से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो PCR टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका PCR का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। और वो क्या एक ऐसी बात छुपाते हैं लैब वाले जिसके पता चलने से आपके अंदर का डर और खौफ ख़त्म हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाता हूँ। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी होल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये RNA, और ये वो RNA है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये RNA हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो RNA जो कि सबसे ज्यादा तबाही करता है, जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो RNA जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं IgM, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन G इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पर इस वायरस को
तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहां पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस आरएनए को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका आरएनए जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक होल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है इसका ये आरएनए। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही आरएनए जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आरएनए, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फर्ज करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलहदा अलहदा कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको अब बताता हूं। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वैबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो ये दोनों जो आरएनए हैं, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस सेल के इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद आरएनए है या ये वो आरएनए है जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका PCR टेस्ट इसके बावजूद कि आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं लेबोरेटरी वालों की बदनीयती की बात सिर्फ एक खास वजह से कर रहा हूं। अगर आप गौर करें कि किसी एक लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट है PCR डिटेक्टेड की, नीचे इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो ये मत समझें कि वायरस आपके अंदर नहीं है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हमने टेस्ट प्रॉपर ना लिया हो, आपका स्वैबिंग ठीक ना की हो, हमारी किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस आपके नीचे बैठा हो हिस्सों में और ऊपर ना बैठा हो। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा फेयर इनफ। लेकिन आपने कहीं पे एक जुमला ये दर्ज नहीं किया कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो इसकी भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप लोग परेशान मत हों। उन्होंने वो इसलिए नहीं किया कि वो खौफ का कारोबार कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोग खौफजदा रहेंगे उतना ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे, जितने ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे उतनी ज्यादा उनकी तिजोरियां भरेंगी। अभी वो अरबों पाकिस्तानी रुपीस कमा चुके हैं इस PCR टेस्ट के ऊपर। उनको पता है कि जब तक लोग खौफजदा हैं वो इस कारोबार में फायदे में हैं। तो आम लोगों के लिए फिर इसका क्या हल है? ये तो एक प्रॉब्लम मैंने बताया है, इसका हल ये है, अगर आपको अलामात हैं और आपका PCR पॉजिटिव है तो आपने मुकम्मल तौर पे वैसे ही अपना इलाज करना है जैसे डॉक्टर्स आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं तो इस चीज के चांसेस हैं कि ये वायरस मर चुका है और टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है। और अगर आपका PCR पॉजिटिव भी आता रहता है अलामात जाने के बावजूद, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब ये एक दफा टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर ये सलाहियत भी खत्म हो जाती है कि ये आपसे किसी दूसरे को लग जाए। तो अपनी आइसोलेशन को आप रिलैक्स कर सकते हैं जब एक दफा आप अलामात से निकल आए। तो क्या इसकी कोई साइंसी आपको भी प्रूफ मिल सकता है? जी, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, जो मैंने एक दिन पहले मिसाल दी थी और मैं ये दोबारा दिखा रहा हूं कि एक दोस्त हैं जिनका इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके 2 दिन के बाद भी जब उन्होंने अपना PCR का टेस्ट करवाया तो वो उन्होंने पॉजिटिव दिया। और वो शख्स जो
اس سے صحت یاب ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ انتہائی ٹینشن میں چلے گئے ایک بار پھر کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے, آپ اس کو سیو کریں ڈاؤن لوڈ کر کے, آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو جائے. جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے, غیرت, ایمان اور عقل. اب ان تینوں چیزوں سے خالی ہیں.